A warm good morning, my dear students. Welcome back to online class of social study. Students, let's continue the chapter 6.3 Mahatma Gandhi leads the nation. In this chapter, till now we study the repressive British law, Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement. After non-cooperation movement, we learn about the Chauri Chora incident, and when Gandhiji stopped the non-cooperation movement in national level, then we learn about the struggle continue by the some Congress leaders. Okay, and after that we learn the Simon Commission. Then we also learn about the demand of complete independence by National Congress, and some leaders they demand for complete independence. And we discuss about the Dandi March. Last class we discussed about the Dandi March, civil disobedience movement and Swadeshi movement. After Swadeshi movement, all are very active. Okay, they want to achieve their independence in any cost of life. Okay, so when Gandhiji started Swadeshi movement, then he also launched a new movement, that is the Quit India movement. So today we are going to learn the Quit India movement and the revolutionaries. Okay, so student, look at your book, page number 122. The World War II had broken out in 1939. England had to join the war against Japan, but it forced India also into the war. The Indian leaders were not even consulted. They felt very insulted. In 1942, the Japanese force started advancing towards India. Gandhiji was very angry with the British for pushing India into the danger of war. He asked the British to quit India immediately. The people were asked to do or die for the freedom of the country. The British government tried to crush this movement. Gandhiji and many other leaders were put behind bars. So student, the Quit India movement, also known as Indian August movement or Bharat Chodo Andolan, was launched at the Mumbai session of the All India Congress Committee, okay, by Mahatma Gandhi on August 9, 1942. Okay, so ये जो मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन या तो अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था मुंबई सेशन में ईयर 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। द प्रोटेस्ट वॉज इंटीमेट टू डिमांड एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सिंस मूवमेंट वॉज हेल्ड इन अगस्त, इट इज़ नोन एज अगस्त क्रांति और अगस्त मूवमेंट। इसका मेन मोटिव था कि अंग्रेज़ों को ये बोला जाए कि तुम अब भारत छोड़ के चले जाओ, और ये अगस्त में स्टार्ट हुआ, जिसलिए इसका नाम पड़ा अगस्त क्रांति, या तो इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यू नो दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियंस ने ब्रिटिश का हेल्प किया था, क्योंकि उनको लगा था कि ब्रिटिश हमारे देश को छोड़ के चला जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब जापानीज ब्रिटिश से फाइट करने के लिए इंडिया में घुस रहे थे, मतलब इंडियन पीपल को भी प्रॉब्लम दे रहे थे 1942 में, तब ब्रिटिश ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने इंडियंस पीपल को उस लड़ाई में फोर्सफुली डालना चाहा कि, और बिना इंडियन से परमिशन के लिए ब्रिटिश ने कोई भी इंडियन लीडर से परमिशन नहीं लिया, किसी से भी कंसल्ट नहीं किया इस मूवमेंट के बारे में, कि लड़ाई के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं हुआ था, किसी भी लीडर से नहीं हुआ था। वो फोर्सफुली इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में भेज रहे थे, ताकि जापानीज का जब अटैक स्टार्ट हुआ था इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ, तब गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश बिना किसी के हम लोग को मुसीबत में डाल रहे हैं। उस समय गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द रीज़न टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इमीडिएटली। उन्होंने ब्रिटिश को बोला कि तुम इंडिया को इमीडिएटली छोड़ के जाओ,
और इंडियन पीपल्स को बोला कि ये जो समय है ये है डू और डाई का, करो या मरो का, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, या तो तुम अपने देश के लिए कुछ करके मरो, मतलब ऐसे भी तो अगर ब्रिटिश हमको फोर्सफुली अगर ढकेलेगा तो हम मरेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम अपने देश को बचाने के लिए फ़ाइट करें, अपने देश को सेव करें, उसके बाद अंग्रेज़ों को हमारे देश से निकालें। तो इसलिए गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन बनाया। ओके, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश दिस मूवमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट को क्रश करना चाहता था, उसको तोड़ना चाहता था, जिसके कारण ब्रिटिश मूवमेंट क्या किया, जब ये बात जब स्टार्ट हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था, ठीक है। ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान विश्वविख्यात जो जितने भी आंदोलन हुए थे उस समय ये स्टार्ट हुआ था, और ये सब चर्चा हो रही थी कि अब कैसे भारत को बचाया जा सके, ब्रिटिश को से कैसे छुटकारा पाया जा सके, कैसे ब्रिटिश को निकाला जा सके। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सब पता चलता है तो वो इसको मूवमेंट को क्रश करने के लिए बहुत ही अत्याचार करते हैं। इवन उन्होंने क्या किया, गांधी जी को और जो मेन लीडर्स थे उन सबको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, ताकि ये मूवमेंट जो है ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए। लोगों पे अत्याचार करने लगे, उनको फायर जो वे जो स्टार्ट किए थे, नारा लगाते थे कि तुम भारत छोड़ के जाओ, क्विट इमीडिएटली, तुम इंडिया को छोड़ो, हम अब सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेंगे। जापानी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, तो वो बचाना चाह रहे थे। तब क्या किया अंग्रेज़ों ने कि बहुत भारतीयों को मारा, कईयों को उन लोगों ने जेल में डाल दिया। इस तरह से वो इस मूवमेंट को क्रश करने का कोशिश कर रहे थे, बट they are demanded the British to leave India immediately and transfer their power to Indian National Congress. The British, however, refused to grant immediate independence and said that it could only be granted after the end of the Second World War. वो हम ब्रिटिश से बोलते थे कि हमें तुम्हारा शासन नहीं चाहिए, तुम इमीडिएटली इंडिया छोड़ के जाओ, और ये जो पावर है ये सारा पावर हम हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम तुम्हारा जो भी तुम्हारे पावर्स है, जो भी तुम जो भी मांग रहे हो वो हम सब रिफ्यूज़ करते हैं, हम वो तभी देंगे जब तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा हेल्प करोगे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तभी करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट एज यू नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस पीपल ने हेल्प किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके कोई भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी उनका मदद नहीं किया। तो इंडियन समझ गए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिश उनका हेल्प नहीं करेंगे, ना ही उनके पावर उनको देंगे, इसलिए इंडियंस उनके खिलाफ फाइट कर रहे थे। सो दिस इज अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके स्टूडेंट, द रिव्यूज न्यूज़ ओके, सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर डिड नॉट बिलीव in Gandhiji non-violence method. They said that the British could not be made to leave India without violence. So they parted from Gandhiji and started fighting for India freedom in their own way. They include such great patriots as Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismillah, Asif Ullah and Sitaram Raju. These people sacrificed their lives happily for the sake of the country. So कुछ पीपल थे जो कि जैसे गांधी जी का एक ही मोटो था, उनको गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था, गांधी जी का वेपन्स क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बट कुछ लीडर्स जो थे उनका कहना था कि गांधी जी का ये जो मेथड है कि चुपचाप से नॉन वायलेंस के मेथड से फ्रीडम करें, ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज जैसे को तैसा, अगर हम कितना भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं। गांधी जी का कहना था कि अगर कोई आपको एक गाल दिखा में मार रहा है, अब दूसरे गाल में उसको दिखा दो ताकि दूसरे गाल में आपको ना मारे, शर्म आ जाए। बट ब्रिटिश ऐसे नहीं थे, ब्रिटिश इतने गुस्से वाले थे, इतने अत्याचारी थे, इतना वो इंडियंस को परेशान करते थे कि वो इंडियंस के पीपल का इमोशन का बहुत फ़ायदा उठाते थे, उनको और पेनफुल देते थे, उनको ज़बरदस्ती मारपीट करते थे। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि उनका ये था, वो गांधी जी से अलग हो जाते हैं। वो गांधी जी की जो नॉन वायलेंस का मेथड था उससे अलग होके अपने हिसाब से
लड़ना शुरू करते हैं। उनका था कि अगर तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं तुमको 2 थप्पड़ मारूंगा, ऐसा मतलब जैसे को तैसा का उनका डिसीजन था। और ये स्टार्ट किए अपना फाइटिंग अपने वे में, अपने तरीके से इन्होंने अपना फाइट स्टार्ट किया इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। ये बहुत बड़े ही देशभक्त थे, ये इनको अपने देश से बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि ये खुशी खुशी से हैप्पीली अपने आप को देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार थे। ठीक है, उनमें से थे, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ये लोग जो ग्रेट थे, इनका था कि ट्रीट फॉर टैट, तुम जैसे हो हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। सो दिस मच फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।